Hello friends, today we are started a last session number 8, chapter number 1, reproduction in lower and higher plants. So now the last topics are remaining in this chapter: seed and fruit development, significance of seed and fruit formation, apomixis, parthenocarpy and polyembryony. Okay, now the first topic is a seed. After fertilization, complete fertilization, after formation of endosperm and embryo, the seeds are developed. So what is seed? The seed is formed from the ovule. After fertilization, ovule is converted into the seed. Ovules are present in the ovary. So mature ovule develop into the seed. The typical seed consists of seed coat, outer seed coat, cotyledon, endosperm and single embryo. So once again I will repeat, the seed contains seed coat. Seed coat is a protecting covering. Second one is a cotyledons, endosperm and single embryo. These are the typical seed containing. Seed sometimes consists of two distinct covering. A typical outer seed coat called as a testa and inner seed coat is called as a tegmen. So in typical seed, there are two layers are there: outer hard testa and inner thin tegmen. So now look at the diagram. These are the two seeds, dicot seed and monocot seed. So in dicot and monocot seed, these are the structure of dicot and monocot seed. So now next topic is a development of dicot seed. So dicot seed, the storage of food in the angiosperm, in the dicot and monocot are completely different. So according to the storage of the reserve food material in dicot and monocot, they are completely different. The seeds are completely different. In dicot, there are two cotyledons are present, and these two cotyledons have a vascular connection to the embryo. So dicot में कितने cotyledons हैं? 2. And these two cotyledons have a vascular connection to the embryo. Dicot seeds are two types: endospermic and non-endospermic. Dicot seed कितने टाइप है? Endospermic and non-endospermic. In endospermic seed, dicot seed, the reserve food material is stored in the endosperm. In endospermic seed, the reserve food stored in the endosperm, and during germination, these two cotyledons act as a absorptive organ, because embryo absorb the food during germination from this cotyledon. So now this food which is present in the cotyledon, these are enzymatically become active, and the starch which is present in the cotyledon converted into the amylase. These amylase require for the seed germination in the form of food. So example, endospermic seed are the tobacco, tomato and peppers. So what is endospermic? Once again I will repeat, what is endospermic seeds? So reserve food material is stored in the form of endosperm, and during germination the two cotyledons act as a reserve absorptive organ. And now this cotyledon, by using enzymatically, with starch converted into the amylase, into the simple form. Okay, and amylase is utilized by the developing embryo. Example, tobacco, tomato and pepper. So these are the endospermic. And now second is a non-endospermic seed. Here the endosperm is absent in non-endospermic seed. Okay, now after double fertilization, the endosperm which is developed, it is quickly remobilized. यहाँ पे endosperm form नहीं होता है. The food is quickly मोबलाइज मीन्स एंडोस्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता, मगर जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का जो सेल है सेकेंडरी न्यूक्लियस, उससे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है वो क्विकली क्या हो जाता है, रिमोबलाइज.
and move into the developing cotyledon for storage. तो ये फूड कहाँ पे स्टोर करता है? In the cotyledon for storage. So here the endosperm is not formed, but after fertilization, double fertilization, the triploid endosperm जो बनना है वो क्या करता है? क्विकली रीमोबालाइज होता है एंड उसका फूड किस में स्टोर होता है? इन कॉटिलीडन. सो हियर एंडोस्पर्म इज एब्सेंट. एग्जांपल पी, ग्राउंडनट, gram. These are the example of non-endospermic seed. So these are the diagram of non-endospermic seed. So we can easily observe there is a cotyledon. So in the cotyledon the food is reserve food material is a store. जो हम लोग चना खाते हैं, ग्राउंडनट खाते हैं, सिंगदाना खाते हैं, these are the reserve food material. So here endosperm फॉर्म नहीं होता है. endosperm फॉर्म में से पहले जो फूड है reserve food material वो कॉटिलीडन में रीमोबालाइज हो जाता है. और एंडोस्पर्मिक में हम लोग देखा एंडोस्पर्म विच आर फॉर्म, बाद में एंडोस्पर्म बाद में फूड किसको सप्लाई करता है? डेवलपिंग इम्ब्रियो को ड्यूरिंग जर्मिनेशन. सो दीज आर द एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. सो नाउ हम लोगों ने डाइकॉट का देखा, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट. डाइकॉट में देखा एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट सीड. So development of monocot seed is completely different than dicot. Completely different than dicot. The monocot seed consists of seed coat, endosperm and embryo. तो इसको पहला क्या है? प्रेजेंट मोनोकॉट में सीड कोट. सो सीड कोट is formed from the fusion of layers, outer and inner layers. Is called as a hull. तो हम लोग जो सीड कोट रहती है मोनोकॉट की हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते. कोई भी ग्रेन ले लो आप लोग, मेज़ ले लो, गेहूँ ले लो, तो उसका ऊपर का कवरिंग निकाल नहीं सकते. बिकॉज आउटर कवरिंग एंड इनर कवरिंग आर फ्यूज टू फॉर्म हल. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हल. एंड दे आर कम्प्लीटली फ्यूज टुगेदर. सो दीज आर द आउटर सीड कोट. ओके, नाउ सेकंड वन इज द एंडोस्पर्म. सो आपको ऊपर पार्ट जो दिख रहा है, दीज आर द एंडोस्पर्म पार्ट. सो नाउ इन द एंडोस्पर्म पार्ट हैविंग अ टू लेयर्स. फर्स्ट वन इज द एलुराइन लेयर एंड रिजर्व फूड मटेरियल लेयर. उसको हम लोग बोलेंगे एंडोस्पर्म. सो देर आर टू मेजर पार्ट. आउटर सिंगल लेयर कॉल्ड एज एलुराइन लेयर एंड मेनली मेड अप ऑफ एलुराइन पाउडर एंड इनर वन इज अ स्टार्ची एंडोस्पर्म. सो इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो. सो इन दिस डायग्राम वी कैन इजीली ऑब्जर्व द टू लेयर इन द एंडोस्पर्म. आउटर एलुराइन लेयर जो प्रोटीन एलुराइन से बनी है and inner one is a starchy endosperm. Inner जो क्या है? Starch. So now this alurine layer in the presence of hydrolytic enzyme. Which enzyme? Hydrolytic enzyme. Here it helps to convert starch into the amylase. जो एंडोस्पर्म अंदर है स्टार्ची एंडोस्पर्म, वो स्टार्च को कन्वर्टेड किस में करता है? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इट कन्वर्टेड इनटू द अमाइलेज एंड दिस सिंपल अमाइलेज फूड मटेरियल सप्लाई टू द एम्ब्रियो पार्ट. सो पहले हम लोगों ने सीड कोट देखा इसका. सो सीड कोट कैसा है? फ्यूज टुगेदर कॉल्ड एज हल. सेकंड इज एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म में दो पार्ट देखे हम लोगों ने, एलुराइन लेयर और इनर स्टार्ची एंडोस्पर्म. एलुराइन लेयर इज मेड अप ऑफ एलुराइन प्रोटीन. ओके, इसका मेन फंक्शन क्या है? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ड्यूरिंग जर्मिनेशन इट कन्वर्टेड complex food material starch into the simple one amylase and this amylase utilized by the radicle. Okay, and inner starchy endosperm store a starch in the form of food. Next one is the embryo. So now in monocot embryo consists of a single cotyledon. It consists of single cotyledon. Okay, नीचे आप लोग देख रहे हो डायग्राम में. So it consists of single cotyledon. So it consists of single cotyledon. Okay, is called as a scutellum. हम लोग उसको क्या बोलेंगे? दिस एम्ब्रियोनिक पार्ट को क्या बोलेंगे? सिंगल cotyledon is called as a scutellum and embryo axis with plumule. So यहाँ पे देखो इन scutellum there are two parts, coleryza and coleptile. वापस देखो हम लोगों ने सीड कोट देखा, एंडोस्पर्म देखा, नाउ दिस एम्ब्रियो पार्ट. एम्ब्रियो पार्ट इज कॉल्ड एज अ scutellum and it is a single in monocot. Single in monocot. It has two parts, coleptile and coleryza. Okay, so coleptile completely cover to the
plumule. किससे कवर है? Plumule. And plumule give rise to the stem part, while coleorhiza cover to the radicle. Radicle give rise to the root system. Plumule shoot system, radicle root system. Radicle किससे कवर है? coleorhiza. Plumule किससे कवर है? coleoptile. So now एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये डायग्राम, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट मोनोकॉट से. सो इसमें कौन कौन से पार्ट है? हम लोगों ने सीड कोट देखा. सीड कोट कैसा है? फ्यूज टुगेदर, ओके, कॉल्ड एज अ हल. सेकंड वन इज एंडोस्पर्म पार्ट. एंडोस्पर्म पार्ट में दो रीजन है, एल्यूराइन लेयर एंड स्टार्ची एंडोस्पर्म. एल्यूराइन लेयर का हम लोगों ने देखा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंस में क्या करता है? कॉम्प्लेक्स स्टार्च को कन्वर्ट किस में कर देता है? सिंपल अमाइलेज में, जो यूटिलाइज करता है एम्ब्रियो ड्यूरिंग डेवलपमेंट. And embryo part is called as a scutellum, and in monocot it is single. So scutellum consists of two region, coleoptile and coleorhiza. Coleoptile cover the plumule. Plumule give rise to the stem axis, okay, while radicle coleorhiza cover to the radicle. Coleoptile किससे cover है? plumule से. और coleorhiza radicle give rise to the root system. So these are the monocot seed, development of monocot seed. Now the next topic is a formation of fruit. Formation of fruit. So what is fruit? हम लोगों ने seed देखा. Seed is a fertilized ovule. Seed is developed from the fertilized ovule, while fruit is developed from the ripened ovary. ओवरी के बीच में ओवल रहते हैं, इसलिए फ्रूट के अंदर आपको सीड पाए जाते हैं और ओवल सीड बनाते हैं. बट जो ओवरी है, कंप्लीट ओवरी, द राइपन ओवरी इज कॉल्ड एज अ फ्रूट. Fruit is a ripen ovary. Fruit may be two types, true fruits and false fruit. Okay, true fruits किसको बोलेंगे? It is exclusively developed from the ovary. सिर्फ ओवरी से डेवलप होता है, उसको हम लोग ट्रू फ्रूट बोलेंगे. एग्जाम्पल मैंगो. While false fruit develop other than ovary. Other than ovary means वो थैलामस से भी बनाता है, अदर फ्लोरल पार्ट से भी बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट. एप्पल का आप लोग जो ऊपर खाते हो, दीज आर द थैलामस. और अंदर का जो सीड्स के बगल में रहता है, आप कट कर देते हो, खाते नहीं हो, वो एक्चुअली फ्रूट से, वो ओवरी से पार्ट बना है. जो आप लोग खाते हो क्या है? थैलामस. सो एप्पल किस में आता है? फॉल्स फ्रूट में. और मैंगो किस में आता है? ट्रू फ्रूट्स. वापस देखो, व्हाट इज ट्रू फ्रूट्स? ट्रू फ्रूट्स आर डेवलप एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द ओवरी, वाइल फॉल्स फ्रूट डेवलप अदर दैन ओवरी. किससे बना है? अदर दैन ओवरी. सो दीज आर द ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट. ओके, सो हम लोगों ने सीड भी देखा, फ्रूट भी देखा. व्हाट इज सीड? सीड डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, while fruit develop from the ripen ovary. Okay, now the significance of seed and fruit. Okay, so these are the first significance क्या है? Fruit provide nourishment to the developing seed. Fruit क्या provide करता है? Nourishment to the developing seed. Fruit protect the seed in the immature condition. देखो यहाँ पे immature, seed immature है, fruit fall हो गया, तो ऊपर का जो कवरिंग है फ्रूट किसको प्रोटेक्ट करते हैं? सीड को. सीड एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल. ओके, सीड एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल इन मेनी स्पेशीज. ओके, आप लोग जो ड्राई फ्रूट्स खाते हो, बादाम है, वो क्या है? दिस आर रिजर्व फूड मटेरियल. उसमें ऑयली सब्सटेंस है. सो बाद में जब ड्यूरिंग जर्मिनेशन इट प्रोवाइड the food to the developing embryo for the germination. So seed act as a reserve food material. Okay, seed serve as an important propagating organ of plant. Important propagating organ of plant. Seed and fruit develop special devices from the dispersal. देखो यहाँ पे बहुत सारे सीड्स रहती है. सीड्स उसको कॉटनी पार्ट रहता है, तो एक उड़ के एक जगह पे दूसरी जाता है. फ्रूट्स बहुत सारे एनिमल्स है, बर्ड्स है, फ्रूट को खाने के लिए यूज़ करते हैं, मगर एट द सेम टाइम इट ऑल्सो डिस्पर्स द सीड. सो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ द सीड्स एंड फ्रूट्स. सो ये आपका हुआ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एपोमिक्सिस. सो व्हाट इज एपोमिक्सिस? विदाउट फर्टिलाइजेशन, द एम्ब्रियो इज फॉर्म. क्या फॉर्म हुआ? विदाउट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलप होता है, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो इज फॉर्म बाय असेक्सुअल मेथड. इट्स कॉल्ड एज अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ एपोमिक्सिस.
Okay, what is apomixis? Without fertilization, the embryo is formed is called as a apomixis, and the seed is called as a apomictic seed. सीड को बोलेंगे एपोमेक्टिक, फिनोमिना को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस. वंस अगेन आई विल रिपीट व्हाट इज एपोमिक्सिस. विदाउट फर्टिलाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो takes place. The phenomena is called as a apomixis and the seed is called as a apomictic seed. So apomixis में देखो यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन, देखो मैंने क्या बोला, एम्ब्रियो किससे डेवलप होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो उसमें पहला कौन सा है, एपोगैमी. एपोगैमी में with the help of gametophyte the embryo is developed by asexually. मीन्स गैमेटोफाइट से विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपोगैमी. एंड एपोस्पोरी में स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर से, वापस देखो एपोगैमी, गैमिट मीन्स गैमिट मीन्स मेल गैमिट हो सकता है, फीमेल गैमिट हो सकता है, मगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मगर उससे क्या बनता है, एम्ब्रियो. उसको बोलते हैं एपोगैमी. एंड व्हाट इज एपोस्पोरी? इन एपोस्पोरी by using diploid sporophyte organ में लीव्स आता है, स्टेम आता है, रूट आता है. द एम्ब्रियो इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज अ एपोस्पोरी. एपोस्पोरी का एग्जांपल है ऑरेंज, मैंगो, दिस आर द एपोस्पोरी. एम्ब्रियो डेवलप होता है, कहाँ से डेवलप होता है, इन एपोस्पोरी स्पोरोफाइट बॉडी से. देखो कभी मैंगो का रूट से दूसरा प्लांट निकल के आता है बाहर, ऑरेंज का भी ऐसे है, रूट से बनता है ना. So embryo develop होता है. These are called as apomixis, apogamy and apomixis. So next topic is the categories of apomixis. So categories में first आता है recurrent apomixis. In this type the embryo sac generally rise either from an archisporial cell or from other part of the nucellus. तो यहाँ पे देखो इन recurrent apomixis में embryo form होता है without fertilization. तो यहाँ पे archisporial cell से develop हो रहा है. ये वन ऑफ द पार्ट ऑफ द न्यूसेलस. न्यूसेलस किसको सराउंडेड है, आपने देखा फीमेल गैमेटोफाइट में, इट इज सराउंडेड टू द एम्ब्रियो सैक. तो न्यूसेलस या आर्चिस्पोरियल सेल से एम्ब्रियो डेवलप होता है, उसको बोलते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस. एग्जांपल टेरेक्सैकम. ओके, एंड सेकंड इज अ नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस. रिकरेंट एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो डेवलप होता है फ्रॉम द आर्चिस्पोरियल सेल. एम्ब्रियो सैक जनरली राइज, एम्ब्रियो सैक किससे डेवलप होती है, आर्चिस्पोरियल सेल या न्यूसेलस से. ओके, इन नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज यूजुअल मियोटिक डिवीजन एंड हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म. यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल से क्या डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस. तो एपोमिक्सिस में हम लोग रिकरेंट देखा और नॉन रिकरेंट. रिकरेंट में एम्ब्रियो सैक जनरली कहाँ से डेवलप हो रहा है, राइज कहाँ से हो रहा है, आर्चिस्पोरियल सेल या न्यूसेलस से. और नॉन रिकरेंट में इट इज़ डेवलप फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल. ओके, एग्जांपल इस नॉन रिकरेंट का एग्जांपल है निकोटीना. एंड थर्ड वन इज द एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी. इन दिस टाइप एम्ब्रियो में डेवलप फ्रॉम द सोमैटिक न्यूक्लियस और इंटेगमेंट. सोचो यार, फर्स्ट में हम लोगों ने रिकरेंट में देखा था किस में हो रहा है, किससे डेवलप हो रहा है, आर्चिस्पोरियल सेल या सम पार्ट ऑफ द न्यूसेलस. नॉन रिकरेंट में मेगास्पोर मदर से डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो सैक. एडवेंटिशियस में इंटेगमेंट से डेवलप हो रहा है, किससे हो रहा है, सोमैटिक न्यूसेलस और इंटेगमेंट से. ओके, सो इन एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी में इन दिस टाइप एम्ब्रियो में डेवलप फ्रॉम द सोमैटिक न्यूसेलस और इंटेगमेंट अलॉन्ग द नॉर्मल zygotic embryo. अलॉन्ग वर्ड क्या है उसके यहाँ पे, अलॉन्ग विद द नॉर्मल zygotic embryo. इट इज़ कॉमन इन मैंगो, ऑरेंज एंड लेमन. सो दीज आर द कैटेगरी ऑफ एपोमिक्सिस. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अ पार्थिनोकार्पी. आप लोग नीचे डायग्राम देख रहे हो कि एक वाइल्ड बनाना है. वाइल्ड बनाना में देयर आर मेनी सीड्स आर देयर. नीचे देख रहे हैं आपको, दिस इज द वाइल्ड बनाना. और ऊपर वाला जो है वो वाइल्ड बनाना नहीं है, हम लोगों ने डोमेस्टिकेटेड किया है, वो बनाना है. सो व्हाट इज पार्थिनोकार्पी. ओके, द पार्थिनोकार्पी टर्म किसने कॉइन किया है, नॉल ने. इट इज़ कॉइन बाय नॉल. इन दिस इज कंडीशन इन विच फ्रूट इज डेवलप विदाउट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन. पार्थिनोकार्पी में फ्रूट इज डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज अ पार्थिनोकार्पी. Without fertilization, fruit is developed, it's called as a parthenocarpy, and these are the seedless fruit.
फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो सीड बनने का चांस ही नहीं है। ओके, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीडलेस फ्रूट। ओके, इट इज़ ऑकर नेचुरल इन सम वेराइटी ऑफ पाइनएप्पल, बनाना एंड पपाया। जो नीचे डायग्राम दिखा है आपको, सीड दिख रहा है आपको बनाना में, तो ये वाइल्ड वेराइटी में है। मगर नॉर्मल कंडीशन में हम लोग देखोगे तो बनाना भी नेचुरली सीडलेस रहता है ना। ओके, दिस आर द पार्थिनोकार्पी। ग्रेप्स भी आते हैं, ग्रेप्स में कभी सीड रहता है, किसी किसी में देखे तो वो पार्थिनोकार्पी नहीं, मगर जिसमें सीडलेस ग्रेप्स रहेंगे दिस आर द पार्थिनोकार्पी। सो नाउ इंडोल 3 एसिडिक एसिड यूज टू डेवलप मीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पार्थिनोकार्पी इन द प्लांट। जिस प्लांट को सीड नहीं आता होगा, फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसमें इंडोल 3 एसिडिक एसिड, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सीजन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू बिकम सीडलेस fruit. Okay, so here was Partheno. What is Parthenocarpy? The word coined by the Knoll in 1902. Parthenocarpy means without fertilization the fruit is developed is called as a Parthenocarpy fruit. This fruit is also seedless fruit. So naturally pineapple, banana, papaya are the Parthenocarpy fruit, and for the naturally the इंडोल 3 एसिडिक एसिड ए बोलते हैं हम लोग उसको, ऑक्सीजन का टाइप है ये। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डेवलप फॉर्मेशन ऑफ पार्थिनोकार्पी फ्रूट। सो ये हुआ पार्थिनोकार्पी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ पॉली एम्ब्रियोनी। आपको डायग्राम में दिख रहा है, आपको एक ही एम्ब्रियो चाहिए एक सीड से, मगर यहाँ पे बहुत सारे एम्ब्रियो क्या हुए, डेवलप हुए। तो हाथ में दिख रहा है आपके। सो देयर आर मेनी एम्ब्रियोज आर डेवलप फ्रॉम सिंगल सीड है वहाँ पे, मगर एम्ब्रियो कितने, बहुत सारे हैं ना, 2-3-4 है ऐसे। सो दिस आर कॉल्ड अ पॉली एम्ब्रियोनी। सो व्हाट इज पॉली एम्ब्रियोनी? डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड द सीड। डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड द सीड and the condition is called as a polyembryony. Poly means many embryo बनते हैं, poly means many. So development of more than one embryo. एक सीड से एक ही एम्ब्रियो डेवलप होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में एक ही एम्ब्रियो डेवलप होता है, बट इन सम केसेस फ्रॉम वन सीड द मेनी एम्ब्रियोज आर डेवलप। मैं आपको नीचे डायग्राम में दिखा आपको। ओके, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द न्यू प्लांट। क्योंकि बहुत सारे एम्ब्रियो बनते, तो बहुत सारे बनने में एक तो कोई जिंदा रहेगा, सो इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ न्यू प्लांट। Polyembryony may be true or false depending upon whether may embryo arise from the same embryo sac or different embryo sac in the same ovule. It may be false or true. Polyembryony कैसा है, false or true depending upon whether may embryo arise from the same embryo sac, एक embryo sac से डेवलप होता हो या different embryo sac से। ओके, सो पॉलीएम्ब्रियोनी में दो टाइप है, एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी एंड क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। एडवेंटेटिव में एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल ऑफ न्यूसेलस एंड इंटैगमेंट। ओके, इसको बोलते हैं एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में एम्ब्रियो कहाँ से डेवलप हो रहा है, डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल, डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल एंड डिप्लॉयड सेल ऑफ न्यूसेलस एंड इंटैगमेंट। एग्जाम्पल सिट्रस, ये एडवेंटेटिव है। सेकंड है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लीवेज में जाइगोट प्रो एम्ब्रियो समटाइम डिवाइडेड इनटू द मेनी पार्ट ऑफ यूनिट। इसमें जाइगोट प्रो एम्ब्रियो क्या हो रहा है, डिवाइडेड हो रहा है। पहले में क्या था, न्यूसेलस और इंटैगमेंट डिवाइडेड होके एम्ब्रियो बना रहे। सेकंड में जाइगोट प्रो एम्ब्रियो डिवाइडेड, इसको बोलते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये अपना हुआ पॉली एम्ब्रियोनी। सो आज ये चैप्टर ख़त्म हुआ है, पूरा सेशन अपना ख़त्म हुआ। टोटल 8 सेशन मैंने लिए। ओके, सो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल टेक अ क्वेश्चन आंसर सेशन। कैसा रहेगा, क्वेश्चन आपको मैं असाइनमेंट दे दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा जो लगता है आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से आप लोग स्टडी कर सकते हो। ओके, चलो टेक केयर, वंस अगेन थैंक यू।